So class, let's start with the example. Now we know there are four methods. Okay, one is specific identification. Specific identification is relatively easier. यानी आपको पता है कि आपने क्या चीज बेची. तो अगर आपको पता है कि आपने क्या चीज बेची तो आप उसी को बीच में से माइनस या प्लस कर देंगे. क्या चीज खरीदी उसको बीच में ऐड कर देंगे. क्या चीज बेची उसको बीच में से माइनस कर देंगे. लेकिन अगर वो बाकी कोई assumptions हैं तो वहां पे शायद थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो जाए ये देखने में कि आपने कितनी चीजें खरीदी और वो कौन से रेट से और जो चीजें बेची वो उसके कौन से रेट से. तो वहां पे शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, थोड़ा सा मुश्किल हो जाए. ठीक है. सो दिस इज आवर एग्जांपल एंड वी विल स्टार्ट विद दिस एग्जांपल और इसके ऊपर हम लोग सारी चीजें अप्लाई करेंगे. सारे मेथड जो हमने पढ़े वो सारे मेथड वन बाय वन इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे. Okay, so let's start. Before we start, can you please pause it so that we can attach the mic? So let's start class. So now this is our data. This is the data. The bike company. We have cost of goods available for sale. August 1st is your beginning inventory. August 1st जब आप आए तो ये आपके पास पहले से इन्वेंट्री पड़ी हुई थी beginning. Okay, opening inventory. And you had 10 units at $91. आपके पास 10 यूनिट पड़े हुए हैं जिनकी कॉस्ट आपके पास आ रही है $91 की. Okay. August 3rd you purchase more 15 units at 106, so the total is 1590. August 17 you purchase 20 units at 115, so the total cost is 2300. August 28 you purchase further 10 units at rupees 119, so the cost is 1190. Retail sales of goods. Now this is about sales. वो purchase था ऊपर, ये sales है. Sale आपने क्या क्या किया? 14 sold on August 14 you sold 20 units at rupees 130. अब ये इसकी सेल्स प्राइस है कि आपने 130 रुपए का बेचा. ओके. August 31st you sold 23 units at 150 and the total sales were 3450. अब आपने क्या करना है? You need to make a inventory subsidiary ledger. आपने inventory subsidiary ledger बनाना है and then you need to record the entries. फिर आपने एंट्री रिकॉर्ड करनी है सेल की भी और परचेज की भी. हर दिन के मुताबिक कि जिस दिन आपने सेल्स की उस दिन क्या क्या सेल किया, जिस दिन आपने परचेज किया उस दिन आपने क्या क्या परचेज किया, आप सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे. दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. सही है? क्लियर है? स्टार्ट करें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आई विल मेक फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक द इन्वेंटरी सब्सिडी लेजर. जी, व्हाट डिड वी से? हाउ डू यू मेक द इन्वेंटरी सब्सिडी लेजर? व्हाट डज इट लुक लाइक? सबसे पहले डेट. So the first thing is you write the date. I'll start from here ताकि white कर दें इसको. अच्छा, इसको हम लोग white कर देते हैं and then it will be okay. So date, then purchase का एक कॉलम, फिर sale का एक कॉलम, balance का एक कॉलम. Okay. So the first column is purchase और purchase के अंदर कितने कॉलम you need to make? You need to make 3 columns in purchase. Okay, so these are your 3 columns in purchase and this is the next column now. और वो 3 कॉलम कौन कौन से होंगे? जी, 3 कॉलम्स कौन कौन से होंगे? यूनिट, जी, कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल. सो दिस इज फॉर परचेज. ठीक, एक आपका कॉलम बन गया परचेज का. द नेक्स्ट कॉलम इज फॉर sold and once again you will have to make 3 columns: unit, unit cost and total. Okay, so unit, cost per unit and then total, and this is for sales or sold. Okay, ये आ गया sales. Then the third one is balance. Balance में once again you have 3 columns: unit, cost per unit and then total. So this is your inventory subsidiary ledger और ये this is about balance. Okay, हो गया? Now you need to look at the data and you need to enter the data. So the first thing is beginning inventory. So first of all आपने beginning inventory लिखनी है कि beginning inventory क्या है और उसके बाद आपने स्टार्ट करना है. beginning inventory आपके पास क्या थी? डेट क्या थी? 1st August. Okay, so you write as 1st August. Okay, बैलेंस कितना है आपके पास 1st August पे? 10 units at 91. So total is 910. इसको कहाँ पे लिखूं? बैलेंस में लिखूं. Okay, 10 units, यूनिट में 10, कॉस्ट पर यूनिट
91, total is 910. सही? Okay, that's done. So this is for 1st August. You have only one cost layer. एक cost layer है. अगर 1st August में मुझे और भी साथ लिखा होता कि 2 और यूनिट्स हैं जो 92 पे खरीदे, 3 और यूनिट्स हैं जो 94 पे खरीदे, तो मैं सबको अलग अलग लिखता. यानी एक, इसके नीचे दूसरा, उसके नीचे तीसरा. Okay. 1st August के बाद what happened? Purchased. Date? 3rd August. So 3rd August I purchased. What did I purchase? 15 units at the rate 106. For 15 units were purchased at the rate 106 and the total would be 1590. अब हर एंट्री के साथ, हर सेल परचेज के साथ आपको अपडेट करना होगा बैलेंस का कॉलम. ओके, सो नाउ लेट्स अपडेट द बैलेंस कॉलम. अब आपके पास टोटल कितने यूनिट्स मौजूद हैं? 25 यूनिट्स मौजूद हैं. 10 एक कॉस्ट के, 15 दूसरी कॉस्ट के. अगर ये कॉस्ट सेम होती तो मैं सबको इकट्ठा लिख लेता, लेकिन दोनों की कॉस्ट अलग अलग है, तो मुझे 2 कॉस्ट लेयर्स बनानी पड़ेंगी. विच मीन्स दिस 10 विल बी रिटन सेपरेटली एंड दिस 15 विल बी रिटन सेपरेटली, ताकि मुझे पता चल सके जब मैं बेचूं तो मैं कौन सा बेच रहा हूं. क्लियर यहां तक? ओके, ये भी हो गया. 3rd August. 3rd August के बाद 3rd August के बाद 3rd के बाद 14 पे सेल की है आपने, तो आपने 14 को रिकॉर्ड करना है. ठीक है? 3rd के बाद आपने 17 पे नहीं जाना, आपने 14 पे जाना है, क्योंकि 3rd के बाद पहले 14 आएगा फिर 17 आएगा. ओके, सो बिफोर वी गो टू 14th August सेल्स, लेट्स टॉक अबाउट 3rd August. 3rd August को जो मैंने परचेज किया, इसकी एंट्री होगी? ये तो मैंने लेजर में रिकॉर्ड किया है ना, इसकी एंट्री भी तो करनी होगी ना, द जर्नल एंट्री. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? याद है किसी को? जर्नल एंट्री क्या थी? ये आपने क्या किया है August 3rd को? परचेज्ड. सो यू परचेज, सो यू नीड टू रिकॉर्ड दी परचेज एंट्री. परचेज की एंट्री क्या है? परचेज की एंट्री क्या है? इन्वेंट्री को आपने परचेज किया, सो इन्वेंट्री इंक्रीज हो गया ना, सो इन्वेंट्री विल बी डेबिटेड. ओके, सो ऑन 3rd August दिस इज व्हाट यू विल डू. यू विल राइट द डेट, ठीक, एंड देन 3rd August you purchased something, so inventory was debited, inventory would be debited, and cash or accounts payable, not receivable, payable. Okay, लग रहा है आपका आज रोजा है नहीं यार. Okay, so it will be accounts payable or cash, whatever the question tells you, and the amount will be 1590, 1590, और आप यहाँ पे नीचे लिख देंगे परचेस्ड, इन्वेंट्री, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी लिखना है आपने. ठीक है? सही? क्लियर सो फार? क्लियर सो फार? ओके, सो द सेकेंड वन. नाउ द सेकेंड वन, आई सोल्ड समथिंग. ओके, आई सोल्ड समथिंग ऑन August 14. सो 14 August आई सोल्ड समथिंग. ओके, कहाँ पे लिखूंगा? किस कॉलम में? सेल्स की कॉलम में. कितने यूनिट्स बेचे? 20 यूनिट्स. 20. ओके, 130. ओके, 2600. सही? 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 ये सही है? पहले ये बताएं. मैंने तो वो किया जो आपने बोला है, मैंने तो नहीं कहा. मैंने तो आपने कहा सर 20, मैंने 20 लिख दिया. आपने कहा 130, मैंने 130 लिया. आपने कहा 2600, मैंने 2600 लिख दिया. आई डिड व्हाटएवर यू टेल मी टू डू. सही है? मुझे तो गलत लग रहा है. बैलेंस को छोड़ें, मुझे ये गलत लग रहा है. बैलेंस तक तो अभी पहुंचे भी नहीं है आप. जरा थोड़ी देर सोच लें कि आप पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको किसी ने ये बताया कि ये कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है अभी तक? आप खुद अज्यूम करेंगे ना, लेकिन फिलहाल तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन में तो आप खुद अज्यूम नहीं करेंगे. जो क्वेश्चन कहेगा आप उसके मुताबिक करेंगे ना. क्या तो क्वेश्चन ने आपको क्या कहे, क्या करके दो? क्वेश्चन आपको कुछ कहे क्या करके दो? नहीं करके था. ओके,
सो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। सो नाउ व्हेन अ यूनिट इज सोल्ड द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ द यूनिट सोल्ड इज एडेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आप स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपने कौन से वाला बेचा, वो बताएगा आपको कि आपने कौन से वाला यूनिट बेचा। अभी आपने 20 यूनिट बेचे, ठीक है। अब ये 20 यूनिट आपने कौन से वाले बेचे ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, ठीक। या तो मैं जाऊंगा किसी एक कॉस्ट अजम्पशन के ऊपर या फिर मैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। बट इन एग्जाम और इन बुक द क्वेश्चन विल टेल यू ना कि क्या करना है। इन रियलिटी आपके ऊपर डिपेंड करोगे, इन प्रैक्टिकल कि आप पे डिपेंड करोगे कि आप कौन सी कॉस्ट अजम्पशन को इस्तेमाल करते हैं या आपके गुड्स की नेचर क्या है। अगर ये टमाटर अंडे हुए तो फिर आपको जरूरत नहीं है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन की, फिर आप इन तीनों में से आइडेंटिकल यूनिट्स हुए तो आप तीनों में से कोई कॉस्ट फ्लो अजम्पशन को इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर नहीं ये आइडेंटिफाइबल यूनिट्स हुए यानी जो अलग अलग हुए तो आप स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन को इस्तेमाल करेंगे, ठीक। ओके, नाउ द क्वेश्चन टेल्स यू ऑन August 14 TBC सोल्ड 20 बाइक्स फॉर 130 ईच। आपने बेचे 20 बाइक्स 130 रुपए का एक बाइक आपने बेच दिया। 9 बाइक्स ओरिजिनली कॉस्ट 91 एंड 11 बाइक्स ओरिजिनली कॉस्ट 106। अब उसने आपको बता दिया कि इसमें से जो 20 आपने बेची उनमें से 9 बाइक्स कौन सी हैं जो कितने की आपने खरीदी थी 91 की, और 11 बाइक्स कौन सी है जो आपने 106 की खरीदी। अब बताएं जी। अलग अलग लिखेंगे, 9 को अलग लिखेंगे और 11 को अलग लिखेंगे। ओके, सो लेट्स डू इट। 9 बाइक्स अलग लिखूंगा, 9 बाइक्स जिसकी कॉस्ट थी 91 और 11 बाइक्स जिसकी कॉस्ट थी 106। So now give me the total column. Give me the total column. जी, give me the total column. 9 into 91. 890. Okay. 819. Okay. 11 into 106. 1166. अब आ जाए बैलेंस के कॉलम पे। अब बैलेंस के कॉलम पे क्या लिखूं? तो करें, बताएं। 11 वाला 424 आ रहा है। कम ऑन क्लास। 91 क्या? 9 वाले 91 टोटल आ रहे हैं। 9 वाला 91 टोटल आ रहा है, लेकिन लिखूं क्या मुझे ये बताएं। 1 यूनिट, फिर 91 और फिर 91। ये कैसे? तो वहां पे 9 चले गए 10 में से, तो एक यूनिट 10 थे ना आपके पास, 91 वाले आपके पास 10 थे। आपने 91 वाले कितने बेच दिए? 9, तो बाकी कितना बच गया? 1 बच गया। 91 वाला 91। क्लियर? ओके, आगे चलें। 106 वाले कितने थे? कितने बिक गए? कितने रह गए? 4। 106 424। क्लियर? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, ये ले। अब इसकी एंट्री पे आ जाए। अब इसकी एंट्री क्या करें जी? सो दिस इज नाउ 14 अगस्त जी। 14 अगस्त को क्या क्या करूं जी? CGS डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। ये किस चीज के लिए एंट्री है? सोल्ड के लिए, CGS को रिकॉर्ड करने के लिए। ओके, सो CGS डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, अमाउंट इनको ऐड कर दें। करें 515 जी। इनकी एंट्रीज अलग अलग नहीं करेंगे, अलग अलग करने की क्या जरूरत है यार? बस CGS है, CGS को तो आप इसी तरह रिकॉर्ड कर दें। हाँ, या इन्वेंट्री की जगह पर अगर आप सब्सिडरी लेजर्स आपके पास हैं और सबका अलग अलग लेजर है तो करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये तो एक ही किस्म की चीजें है ना। बाइक तो एक ही किस्म की है ना, सिर्फ बाइक बेची ना आपने। अगर आपने 20 बाइक्स बेची होती, 10 टायर्स बेचे होते
5 रिम्स बेचे होते, 3 ट्यूब्स बेची होती, तो फिर यहां पर आप हर आइटम अलग अलग है ना, यहां पे आप अलग अलग लिखते, तो फिर आपको पता चलता कि ये बाइक्स वाला बाइक के सब्सिडरी लेजर से माइनस करें, ट्यूब्स वाला ट्यूब के सब्सिडरी लेजर से माइनस करें, टायर्स वाला टायर के सब्सिडरी लेजर से माइनस करें। तो जब आइटम्स अलग अलग होंगी तो इन्वेंट्री के साथ आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी अलग अलग, लेकिन जब आइटम एक ही है बाइक, तो फिर आपको जरूरत अलग अलग करने की नहीं है। ये जो अलग अलग आपको अभी नजर आ रहा है ना, ये इस वजह से है कि इनकी कीमतें अलग अलग थी, अदरवाइज बाइक इज द सेम। बाइक तो सेम है ना, लेकिन इस बाइक की कीमत अलग अलग है, कि एक बाइक की कीमत ये है, एक बाइक की कीमत ये है, ठीक है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, तो उस वजह से मैंने इसको अलग अलग लिख दिया है। ओके, सो नाउ CGS इज 515 किस किस को ऐड किया है? CGS में क्या चीज जाएगी? CGS में क्या चीज जाएगी? कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी है? 819 प्लस 1166, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट मैंने रिकॉर्ड कर दी जी। 14 अगस्त, एनीथिंग एल्स? सेल भी तो किया है ना आपने, तो सेल की एंट्री कौन रिकॉर्ड करेगा? कैश डेबिट, और या तो कैश को डेबिट करेंगे या अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट करेंगे, एंड सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट अमाउंट क्लास अमाउंट वाई सेल। आपने कितनी बाइक्स बेची? 20। कितने की बेची? 130 की। सो नाउ द अमाउंट इज 2600। क्लियर सो फार? 2600 कैसे आया? आपने सेल कितनी बाइक्स की? क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? 20 बाइक सेल की। कितने की एक बाइक बेची? 130 की। तो 20 इंटू 130 क्या हो गया? 2600। इजी डन। ओके, लेट्स मूव ऑन। सही है, ये भी हो गया। अब आगे चलें जी, आगे चलें क्लास। अगस्त 14 के बाद फिर क्या हुआ? अगस्त 14 के बाद और क्या हुआ? अगस्त 17 पे क्या हुआ? परचेज। क्या परचेज किया आपने? 17 अगस्त यू परचेज 20 यूनिट्स। सो ये कहां पे लिखूंगा? परचेज के कॉलम में 20 यूनिट्स एट 115। सो टोटल इज 2300। अब आ जाएं बैलेंस पे। अब बैलेंस में क्या क्या लिखूं? नहीं, अभी तो एंट्री की बात नहीं कर रहा, अभी तो बैलेंस वाले कॉलम की बात करूं। हर वक्त हाँ एग्जैक्टली। अब 3 लेयर्स हो गई। आपके पास एक बाइक पड़ी है जिसकी कीमत आपको पड़ी थी 91 की, इसको अलग लिखें। आपके पास 4 बाइक्स हैं जिसकी कीमत है 106 रुपए, इसको अलग लिखें। और अभी आपने 20 खरीदी जिसकी कीमत है 115, इसको अलग लिखें। सबको अलग अलग लिखेंगे, ठीक है? हो गया? ओके, नाउ यू नीड टू रिकॉर्ड इट। आ जाए अगस्त 17 अगस्त। क्या रिकॉर्ड करना है? परचेज की एंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री डेबिट, ओके, इन्वेंट्री डेबिट, कैश और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अमाउंट इज 2300। क्लियर सो फार क्लास? ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, अगस्त 17 भी हो गया। अगस्त 17 के बाद क्या हुआ? फिर परचेज किया। कब परचेज किया? 28 को आपने फिर परचेज किया। 28 को आपने क्या परचेज किया? तो कहां पर लिखूं इसको? परचेज के कॉलम में लिख दूं। परचेज के कॉलम में क्या लिखूं? परचेज लिखूं तो क्या लिखूं? 10 यूनिट्स 130 130
the double like you ho. Okay ji, 119. So that means total of 1190. Now let's move on to balance column. Now in balance column we need to write 4 cost layers. Okay, 1, 4, 20, 10. Okay, 1 पे आ गया 91, 91, 4 पे आ गया 106, 424, 20 पे आ गया 115, 2300 और 10 पे आ गया 119, 1190. ये इसकी एंट्री 28th August. You purchased, so purchase entry is the same. Inventory debit, cash or accounts payable credit, amount is 1190, 1190. This is also done. अब 31st August, क्या हुआ 31st August को? Sale. So 31st August you sold something. What did you sell? 23 units. अब ये कौन से हैं? अब ये 23 units कौन से हैं? You need to look at the question कि question आपसे क्या कहता है कि 23 units कौन से हैं? Okay? So where is the question regarding 23 units? 23 units किधर गया? 23 units किधर गया? ये? Okay. Okay. Costs associated with sales on August 31st were as follows. August 31st को जो आपने सेल की उसके बारे में आपको बता रहा है. 1 at 91. Okay. 3 at 106. 15 at 115 and 4 at 119. सही? ओके, साथ साथ लिख देते हैं. आ जाए, लिखे जी, बोले कौन कौन सा है? 1 और ये लिखूं किधर? सेल्स के कॉलम में. ओके, 1, 91, 91 बिक गया. अगला 3, 106, 318 ये भी बिक गया. ओके, आगे 15, 115, 1725 and then 4, 119, 476. ये सारी चीज़ें आपने बेच दी. अब आपने दोबारा बैलेंस का कॉलम बनाना है. ओके, सो लेट्स लुक एट द बैलेंस नाउ. 191 एक था आपके पास, आपने वो बेच दिया, खत्म हो गया. 4106 इसमें से कितने बच गए? 1 बच गए. 3 बिक गए, 1 रह गया. तो इसमें से 1 रह गया एट 106. सो दैट मीन्स हमारे पास 1 बच गया 106 वाला, तो 106 हो गया. ठीक. 115 वाले 20 थे, उस 20 में से कितने बेच दिए आपने? 15. कितने रह गए? 5 रह गए 115 वाले, तो कितना रह गया? 575. ओके, आगे चलें. 115, 10, 119 वाले, इसमें से कितने बिक गए? 4. कितने रह गए? 6 at 119. 714. Now let's look at the entry. So entry on 31st August. 31st August की एंट्री क्या होगी जी? 31st August की एंट्री, 31st August की एंट्री, 31st August को कितनी एंट्रीज करनी है पहले तो ये बताएं. 2 एंट्रीज करनी है. कौन कौन सी? 1 for CGS, 1 for sales. ओके, पहले कौन सी एंट्री करना चाहते हैं, CGS या सेल्स? पहले CGS की एंट्री करना चाहते हैं. ठीक है जी. CGS की एंट्री क्या होती है? CGS की एंट्री क्या होती है? CGS डेबिट एंड इन्वेंट्री क्रेडिट. सो CGS डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट. अमाउंट कैसे निकाली आपने? अमाउंट सबको प्लस किया. किस सबको प्लस किया? टोटल ऑफ ये, इसको प्लस किया. ठीक, ये प्लस करें तो आपके पास क्या आ रहा है? 26, 10. 26, 10. एक एंट्री हो गई. अमाउंट साथ साथ चेक करते रहे आप लोग, गलत टोटल ना करते हैं. ओके, अगली एंट्री क्या करनी है?
सेल्स की एंट्री क्या होती है? कैश और अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट. Amount is amount is 3,450. How? Because 23 units were sold 23 units were sold at 150, 3450. So the amount is 3450. So now this is your inventory subsidiary ledger. These are your entries. This is one method. ये टेबल पूरा एक क्वेश्चन है, हमें ये टेबल सारा बनाना है. तो मुझे तो पूरा ही क्वेश्चन लग रहा है. सही वाला टेबल में इसमें ऑब्वियसली. बस ये जी. कितने मार्क्स? अच्छा, देखिए मैं नॉर्मली एग्जाम में आपको ये बनाने का नहीं कहता, ठीक है? ये नहीं कहता कि मेक इन्वेंटरी सब्सिडरी लेजर. मैं क्या करता हूँ, मैं आपसे इसमें से कुछ चीज़ें पूछता हूँ. जिस तरह मैं पूछता हूँ कि दी सेल्स, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन 14th August. ये आपको टोटल करना पड़ेगा. आपको ये रफ वर्क में बनाना पड़ेगा, इस तरह नीट नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन रफ वर्किंग करनी पड़ेगी इसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है? फिर मैं आपसे कह सकता हूं व्हाट वाज द बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री ऑन 28th August. 28 अगस्त को आपके पास इन्वेंट्री में जो चीज़ें पड़ी थी वो कितनी थी? 28 अगस्त इन्वेंट्री में ये चीज़ें पड़ी हैं, बैलेंस. ये आपने मुझे बताना होगा. जाहिर सी बात है, अगर आपने ये बनाया नहीं है तो आप नहीं बता सकते. तो आपको बनाना तो है, लेकिन मेरे लिए नीट करके नहीं बनाना. ये मैं तो आपसे एक एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक एक चीज़. हाँ, एक एक मार्क्स. तो अब मैं इससे कितने क्वेश्चन पूछूंगा ये डिपेंड करेगा. अगर मैं इससे आपसे 4 क्वेश्चन पूछता हूँ तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया 4 मार्क्स का. और एंट्री इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि मेक द एंट्री फॉर परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन 28 अगस्त, तो आपको ये करनी पड़ेगी 1 मार्क के लिए. और अगर मैं आपसे कहूँ कि रिकॉर्ड द एंट्री फॉर सेल्स ऑन 14th August, तो सेल्स की 2 एंट्री हैं, दोनों आपने करनी है, ठीक? 14th August वाली 2 मार्क्स ही हो गए, ठीक है? तो इस तरह मैं आपसे एक एक चीज़ कोई चीज़ पूछूंगा, कोई एक चीज़ पूछूंगा. ये नहीं कहूँगा कि पूरा क्वेश्चन दे दूं और मेक इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर रिकॉर्ड ऑल द जर्नल एंट्रीज 10 मार्क. एक साथ इस तरह नहीं पूछूंगा, अलग अलग पूछूंगा, ठीक है? 4 इसमें से पूछ लिए, 2 इसमें से पूछ लिए, 6 हो गए, 1 यहाँ से पूछ लिया 7 हो गए, 1 वहाँ से पूछ लिया 8 हो गए. सो दैट्स हाउ आई आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, इन एग्जाम. सर इसमें भी आप कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप 2-3 चीजें पूछ लेते हैं तो भी आपने कहा यहाँ पे हम करेंगे, साथ ही हम इसको लेजर बनाएंगे. नहीं, फिर तो आपको साथ साथ लेजर बनाने की जरूरत नहीं है ना. फिर आपको एंट्री खाली उस चीज़ की करने की जरूरत है जो मैं आपसे पूछूंगा. आपको सारी एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है. फिर जो मैं आपसे पूछूं वो एंट्री करें, जो मैं नहीं पूछ रहा वो ना करें. मैंने आपसे अभी 2 एंट्रीज पूछी, एक ये पूछी, एक ये पूछी, बस ये 2 एंट्रीज कर दें मुझे, ठीक है? इसका ताल्लुक बाकियों से नहीं है. ये एंट्री अगर आपने ये ना किया, आप इसके बगैर भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक? ये एंट्री आप इन सब के बगैर भी कर सकते हैं. ये आपके पास होना चाहिए, ये आपका वर्किंग है सारी, ठीक है? अगर इसमें मैं आपसे ये पूछता हूं तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको ये ऊपर वाली 2 काम करने पड़ेंगे. लेकिन मैं आपसे कह नहीं रहा कि मुझे नीट एंड क्लीन बना के दें इतना बड़ा टेबल. बस आप रफ वर्क जहाँ भी करते हैं रफ वर्क कर दें. रफ वर्क शीट आपके पास होती है, उस पर कर दें. मैं नहीं चेक कर रहा, वो मेरा काम तो ये है, मैं तो ये चेक करूँगा, मुझे तो ये फिगर चाहिए, ठीक है? सो दैट्स हाउ आई आस्क क्वेश्चंस इन द एग्जाम. मतलब उस तरह नहीं कि एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स बस लिखते जाएं, बनाते जाएं, नॉट लाइक दिस, ठीक है? नहीं, उस तरह बैलेंस आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, क्योंकि यही तो मैं देखना चाह रहा हूँ ना कि आपको पता है कि कौन सी चीज़ कितनी रह गई है और उसकी कितनी कॉस्ट वाली चीज़ें रह गई हैं, तो वो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर सो फार? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन इज डन. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेथड. ब्रेक. ओके, लेट्स टेक अ 2 minutes ब्रेक जी. इसको पॉज कर दें. लेट्स पॉज. ओके, लेट्स स्टार्ट. Okay, so now we've done one method, specific identification. Now the point is
कि ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन हर वक्त क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये हर वक्त क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये हर वक्त इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कि अगर मैं मार्कर्स बेच रहा हूँ तो मैं तो दिन में कोई 100 बार मार्कर बेचूंगा और डिफरेंट मार्कर्स बेचूंगा, और सब मार्कर्स जो हैं वो मिक्स पड़े होते हैं, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये हर वक्त इस्तेमाल नहीं होगा, ये सारे उस चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा जिसके ऊपर अपना अलग आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा या कोई निशानी होगी या कोई नंबर होगा। जिस तरह गाड़ियों के ऊपर नंबर्स होते हैं, हमने कहा, जिस तरह हर मोबाइल फ़ोन का अलग, हाँ, IMEI अलग होता है, मॉडल अलग होता है, तो इसको मैं इसके लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस वजह से आपको सोचना होगा कि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन इज हार्ड टू यूज व्हेन वी सेल अ लॉट ऑफ इन्वेंट्री दैट हैज लॉट्स ऑफ डिफरेंट कॉस्ट। उस केसेस में ये इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये सिर्फ उस केस में इस्तेमाल होता है जहां पे इन्वेंट्रीज कम कम बिकती हैं, ठीक है, और महंगी होंगी, वहां पे ये इस्तेमाल होगा। इन्वेंट्रीज बड़ी होंगी और महंगी होगी, ज्वेलरी वहां पे इस्तेमाल होगा, गाड़ियां वहां पे इस्तेमाल होगा, फ्रिज, ACs, ठीक, टीवीज, हर एक का मॉडल अलग अलग है, हर एक का स्पेसिफिकेशन अलग है, वहां पे इस्तेमाल होगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड। अब एवरेज कॉस्ट मेथड क्या कहता है? जस्ट लाइक द नेम सजेस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कर दो। आपने पहले यहां पे अगस्त 1 को आपने 10 खरीदे, बैलेंस था, अगस्त 3 को आपने 15 खरीदे, ठीक है। तो अब यहां पर कितने हो गए? 10 एंड 15 25। इस 25 को यहां पे एवरेज करके लिख दें, बस, आसान आसान। दिस इज कॉल्ड एज एवरेज कॉस्ट मेथड। व्हेन अ यूनिट इज सोल्ड, द एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट इन इन्वेंटरी इज असाइन्ड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। द एवरेज कॉस्ट विल बी असाइन्ड, व्हिच मींस दिस कॉस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, 10691 डिफरेंट है ना दोनों। जब यहां पर मैं इसको लिखूंगा, मैं इन दोनों को एवरेज कर दूंगा, ठीक है। एवरेज करना तो आता है ना चीजों को, ठीक। यहां पे एवरेज कर दूंगा, यहां पे एवरेज कॉस्ट लिख दूंगा, 10 15 दोनों मिला दूंगा 25, एवरेज कॉस्ट यहां पे लिख दूंगा। यहां पे जब मैंने 20 बेचे तो 20 मल्टीप्लाई बाय दी एवरेज कॉस्ट। ये नहीं कहूंगा कि 91 वाले कितना बेचा, 106 वाला कितना बेचा, नहीं, एवरेज कॉस्ट, बस। एंट्रीज, अमाउंट्स वो एवरेज वाले लिख दूंगा एंड आई एम डन। गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया? ओके। एवरेज किस तरह आप लोग करते हैं? इसने आपको एवरेज करने का तरीका भी बता दिया है कि एवरेज किस तरह करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑन हैंड ऑन द डेट ऑफ सेल। इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल किधर होती है? कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल इसमें किधर होती है? इसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल किधर है? इफ यू लुक एट दिस, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कौन सी होती है? परचेज आपने जब की और पुरानी अगर कोई चीज पड़ी है, तो अगर मैं दोनों को मिला दूं, सो दिस इज एक्चुअली माय कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कौन सी होती है? जो सेल्स वाले कॉलम में यहां पर आ रही है, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गॉट द आइडिया? स्टार्ट करें क्वेश्चन। सो लकीली द डेटा इज द सेम, ठीक है, डेटा इज द सेम। तो जब डेटा सेम है तो इसी सेम टेबल को चेंज करते हैं, ठीक है, आसान हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा आपके लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट जी। सो नाउ पहले डेटा पे चले जाएं, आपको डेटा बता दें कि डेटा क्या है, या डेटा आपको याद है, या डेटा आपके सामने लिखा हुआ है ना, ठीक है, सामने लिखा हुआ है। ओके, सो ऑन 1 अगस्त 10 91 9 10 इज योर बैलेंस। सबसे पहले तो ये लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगस्त 3 को परचेज 15 यूनिट्स एट 106, एंट्री कर देंगे, इन्वेंट्री डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 1590, यहां पर ये लिख दिया, सही है। अब यहां पर आ जाए, हमने कहा था कि जब भी कोई चीज खरीदेंगे और पुरानी भी कोई चीज पड़ी होगी तो दोनों चीजें मिक्स हो गई। अब समझें, ये किस्म के आप समझे आइडेंटिकल यूनिट्स है, मार्कर्स हैं, ये सेम है, तो हम कहते हैं कि इसकी कॉस्ट को भी एवरेज कर दो। तो अब यहां पर अलग अलग आपने नहीं लिखना, इसको एवरेज करना है। और एवरेज करने का तरीका आपको बताया था थोड़ी देर पहले भी, आप एवरेज करने का आपको तरीका बताया, क्या तरीका बताया था एवरेज करने का? क्या बोला था? क्या बोला था? इन दोनों को ऐड कर दें, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। किन दोनों को ऐड करूं? किन दोनों को? ये इन को इधर है, इसमें इन कौन सा है? 9 10 प्लस 15 90, दोनों को ऐड करने कितना आएगा? पहले टोटल बताएं, स्टेप बाय स्टेप जाएं। 9 10 प्लस 15 90 2600। ख्याल से नहीं ना, बस टेक द कैलकुलेटर आउट एंड डू इट जी। 2500।
2500 आ गई टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो गए? 10 प्लस 15 25 हो गए 25। सो 2500 डिवाइड बाय 25 इक्वल्स, ये ले एवरेज निकले। सिंपल। कॉस्ट को टोटल कर दें, डिवाइड बाय यूनिट्स को टोटल करके उससे डिवाइड कर दें। गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया? ओके नेक्स्ट, 14 अगस्त को आपने सेल्स की, कितने यूनिट्स बेचे आपने? एक मिनट पहले यहां पर तो ये एंट्री अगस्त 3 की एंट्री, इन्वेंट्री डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, अमाउंट 2500। दुर्खान इज सेइंग 2500, इसके मुताबिक 2500। जी अब्बास, दुर्खान सही कह रही है। नहीं सर, नहीं, क्यों मास? अरे तो परचेज की एंट्री है। ये तो परचेज की एंट्री है। तो परचेज आपने कितनी चीजें की? तो इसमें वो तो सेम है। वो तो सेम है, परचेज सेम है, बैलेंस चेंज हुआ है, परचेज इज द सेम, सो एंट्री विल बी द सेम, एंट्री विल बी द सेम, अमाउंट विल बी द सेम। परचेज तो आपने सेम किया ना, आपने 15 यूनिट खरीदे, 106 रुपए के खरीदे, 1590 रुपए उसको दिए, या दिए या आपने कहा बाद में दूंगा, एक हफ्ते बाद दूंगा, बस एंट्री इज द सेम। ठीक है, सेम। आगे जाऊं? ओके आगे चलें। 14 अगस्त यू सोल्ड 20 यूनिट्स। अब क्या लिखूं इधर? सर यहाँ पर एक प्लस में 20 और 100 पे सेल। अब यहां पर जो 20 यूनिट्स मैंने सेल किए, तो वहां पर तो मैंने कॉस्ट लेयर देखे इससे पहले सारी सेम कर दी है ना कॉस्ट लेयर, तो बस यहां पे भी सेम कर दें, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। 20 यूनिट्स और यूनिट कॉस्ट क्या लिखूं? 100। सो दैट मीन्स 2000 यहां पे लिख दो। सो 20 इंटू 100 इक्वल्स 2000। अब चले जाए वहां पे एंट्री पे। अब एंट्री क्या लिखूं यहां पर? 500। किस जगह पर? ये वाली एंट्री है, ये वाली एंट्री? अच्छा पहले बैलेंस लिख दूं, चलें ये लें, पहले बैलेंस लिख दूं। 25 में से 20 बिक गए, बाकी कितने रह गए? 5। अमाउंट 100 इक्वल्स 500। ये लें, ये तो हो गया। ओके ये तो हो गया। अब आ जाए यहां पे, एंट्री क्या करूं? किस एंट्री को चेंज करूं? 14 अगस्त की कौन सी एंट्री चेंज करूं? दोनों एंट्री चेंज करूं? क्या क्या चेंज करूं बताएं? एंट्री चेंज करूं? नहीं, वैल्यू चेंज करूं? यस। कौन सी वैल्यू चेंज करूं? सीजीएस। अब आप देखें सीजीएस आपके पास 2000 आ रहा है ना, ये सीजीएस है ना, आपने खुद कहा सर ये सीजीएस है, सो दिस इज 2000। ओके सीजीएस 2000, तो ये भी 2000 हो जाएगी। ये लें जी, दिस इज ऑल्सो 2000। ओके नेक्स्ट एंट्री सेल। सर ये चेंज नहीं होगी। सेल की एंट्री चेंज नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। होगी नहीं होगी, बस दो ही आंसर है, या होगी या नहीं होगी, और इस तीसरा आंसर है ही नहीं बीच में। तो उसने कहा था कि 130 की सर उसने सेल की है, हाँ। चेंज नहीं होगी फिर। इसका तो कॉस्ट सिंपल, आपने सेल कितने की थी? 130 की, तो आप 130 के मुताबिक 20 सेल किए, 130 इंटू 20 2600। इसका तो कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है ना, कॉस्ट का ताल्लुक तो इससे है, तो ये चेंज होगी, ये एंट्री चेंज नहीं होगी। गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया? ओके आज मास क्या खा के आया है? आज सेरी नहीं की थी। आप रोज ना क्या करें सही, आप सेरी नहीं करते तो सही है, आप सेरी करते हैं तो मसला बनता है। ओके 17 अगस्त यू परचेज अगेन 20 एट 115 इक्वल्स 2300। इसकी एंट्री पे आए। एंट्री सही है, कोई बदलने की चीज जरूरत है? नहीं है। इधर आ जाए, इधर कुछ बदलने की जरूरत है? यस सर। क्या? बैलेंस। बैलेंस को बदल दें। अब आपके पास टोटल यूनिट्स कितने हो गए? 5 पहले से पड़े थे। यू परचेज 20 मोर, सो नाउ टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 25। ओके इसको भी हटा दें, इसको भी हटा दें। 25 हो गए आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स। अब कॉस्ट को देखें, आपके पास पहले से कॉस्ट कितनी पड़ी हुई थी? 500। फर्दर कितनी आ गई? 2300। टोटल कितनी बन गई? 2800। तो फिर एवरेज कितना बन गया? 2800 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स 112। सही है? एंट्री पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि वो तो परचेज तो आपने वही 2300 रुपए की है, परचेज 2300। ओके अगस्त 28 यू परचेज अगेन 10 यूनिट्स,
फॉर 119 1190 एंट्री पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, रिमेन सेम। यहां पर कोई फर्क पड़ेगा? यस। सो नाउ व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स विच यू हैव? 25 प्लस 10 35। ओके, 35 लिख दिया। अब यहां पर आ जाए। नाउ व्हाट इज द टोटल कॉस्ट विद यू? 2800 ये थी, 1190 वो हो गई, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 3990। सो इट्स 3990। तो एवरेज कितनी बन गई? 114। ये बात भी सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके, आगे चलें। इसकी एंट्री भी हो गई। 31 अगस्त। 31 अगस्त आपने सेल किए कितने यूनिट्स? 23 यूनिट्स। याद है? 23 यूनिट्स। 23 यूनिट्स आपने सेल किए थे। तो यहां पर अब क्या लिखूं? 23 लिखूं? एक साथ लिखूं? ओके, ये लें, एक साथ लिख दिए 23। यहां पर क्या लिखूं? 114। यहां पे लिख दूं 114 क्योंकि ये मेरे पास यहां पे कॉस्ट आ रही थी। यहां पर क्या लिखूं? 26 22। एंड हाउ डिड यू गेट इट? मल्टीप्लाइंग 114 विद 23। अब 35 में से 23 सोल्ड, बाकी कितने बच गए? 12। 12 को यहां पर लिख दूं और यहां पर क्या लिखूं? यहां पर क्या लिखूं? 114। और यहां पर क्या लिखूं बैलेंस? कितना? 1368। ये लें। अब आ जाए एंट्रीज की तरफ। सीजीएस चेंज हो गया। सीजीएस अब कितनी हो गई? 26 सॉरी 26 22। 26 10 थी पहले, अब 26 22 हो गई, थोड़ा सा फर्क पड़ गया। और सेल की एंट्री would remain the same. So this is your second method. Done and dusted. You are welcome. जी एग्जैक्टली मैं बताऊंगा। अगर मैं बताऊंगा नहीं तो फिर आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? फिर तो आप नहीं कर सकते ना। ठीक है जी, क्यों नहीं आएगा? ओके, अच्छा, अब यहां पर जरा थोड़ी सी एक चीज देख लें एंड देन वी विल कॉल इट ऑफ फॉर द डे। ये एक चीज जरा देख लें कि ये ओके। अब अगर एंड पे 31 अगस्त पे मैं आपसे कहूं कि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो जरा मुझे ये बताएं इनकम स्टेटमेंट में कौन सी अमाउंट जाएगी और बैलेंस शीट में कौन सी अमाउंट जाएगी? एंड गिव मी द अमाउंट एज वेल। और कहां पर जाएगी? सेल्स कितनी है बताएं, जल्दी बताएं 4600। मुझे क्या बता, आप बताएं। 6050 हाउ? यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, जगह नहीं है, वहां पे लिख रहा हूं। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले आती है सेल्स। जी, सेल्स 2600। अभी तो आप कुछ और कह रही थी। दोनों को प्लस किए। किस किस को प्लस किए? आपने कितनी बार सेल्स की हैं? 2 बार की हैं, ठीक है। कितनी सेल की आपने? 2 तो की है ना। कितनी सेल्स की? 2600। ये नहीं है, ये सेल्स नहीं है, ये सीजीएस है, ये सेल्स नहीं है, सेल्स ये हैं। तो दोनों मिलाकर कितनी हो गई? 6050। सो व्हाट्स योर नेम? मेविश वाज सेइंग, हाँ, क्यों रोजा खराब करने पे तुले हैं? ओके, सो 6050। तो मेविश की कैलकुलेशन सही। इसके बाद क्या लिखते होते हैं? नहीं, क्यों? सेल्स के बाद सीजीएस।
सो व्हाट इज माय CGS? 4,620. अब ये वाली फिगर देखेंगे 2000 प्लस 26 22, या तो यहां से देख लें या यहां से देख लें. CGS 2000, CGS 26 22, so that means your total CGS would be 4,620. 4622. So your gross profit would be 10,670. माशाल्लाह. 1428 CGS को सेल्स में से माइनस करते हैं, प्लस नहीं करते. 10,000 माइनस करते हैं. ये किस किसने टॉप किया था? तो मैंने थोड़ी सा पढ़ा था. ओके, फिगर 428. ठीक है, ये क्लियर हो गया. अब आ जाए बैलेंस शीट पे. बैलेंस शीट पे आ जाए. बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में क्या चीज जाएगी और किधर जाएगी? बताएं मुझे. बैलेंस जाएगी क्योंकि ये हमारा बैलेंस जाएगा, किस चीज का बैलेंस जाएगा? इन्वेंट्री का. देखें बैलेंस शीट में जो भी आपके अकाउंट्स होते हैं ना, पूरे साल या पूरे महीने या जो भी पीरियड है, जिस पीरियड के लिए जिसके एंड पे आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो उस दिन जितने भी टी अकाउंट्स हैं सबके बैलेंसेस आप देखते हैं और उनमें से जो जो बैलेंस शीट के आइटम हैं वो चले जाते हैं बैलेंस शीट में. अब ये कौन सा अकाउंट है? ये कौन सा अकाउंट है? ये इन्वेंट्री का सब्सिडरी लेजर है. ये इन्वेंट्री का सब्सिडरी लेजर है. इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर. तो ये इन्वेंट्री का अकाउंट है. ठीक है, इन्वेंट्री का अकाउंट है. इन्वेंट्री कहां पे जाती है? बैलेंस शीट में. और कौन सी फिगर आप बैलेंस शीट में लिखेंगे? कौन सी फिगर आप बैलेंस शीट में लिखेंगे? कौन सी फिगर? विच फिगर ऑफ दैट अकाउंट? करंट एसेट में तो लिखेंगे ना, वो तो सही है कि इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट, तो करंट एसेट में जाएगा. लेकिन कौन सा फिगर जाएगा? अमाउंट. अमाउंट कहां से आप लेंगे? कौन सा? विच फिगर? जो बिल्कुल लास्ट में आ रहा होगा. क्लोजिंग. बिल्कुल लास्ट में. क्लोजिंग. सो बिल्कुल लास्ट में 1368. बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम कौन सा होगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. दूसरा आइटम क्या होगा? मार्केटेबल सिक्योरिटी. तीसरा क्या होगा? अकाउंट्स रिसीवेबल. फोर्थ क्या होगा? नोट्स रिसीवेबल, नॉट पेएबल. पेएबल इज ऑन द अदर साइड. और इसके बाद होगा इन्वेंट्री. और इसकी अमाउंट क्या आ जाएगी? 1368. सॉल्व. ठीक, डन, क्लियर, ईच एंड एवरीथिंग. ओके.